Bismillahirrahmanirrahim. In our last class, we had discussed about the distribution of electrical power. We had discussed about the primary distribution and we had discussed about the secondary distribution. In our last classes, we have also discussed that we use three-phase AC system for the generation, transmission and distribution of electrical power. जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम थ्री फेज एसी सिस्टम यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द थ्री फेज एसी सिस्टम? Whenever we have the three phase voltages, so what are their connections? Whenever we have the three phase balanced system, whenever we have the three phase balanced source and whenever we have the three phase balanced load, तो उसी सोर्स को और लोड को हम कनेक्ट किस तरह करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी थ्री फेज सर्किट्स और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है, टू फेज सिस्टम क्या होता है और थ्री फेज सिस्टम क्या होता है. सिंगल फेज को हम किस तरह जनरेट करते हैं और थ्री फेजेस को हम किस तरह जनरेट करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज वोल्टेजेस को हम किस तरह जनरेट करते हैं और थ्री फेज वोल्टेजेस को हम किस तरह जनरेट करते हैं. So we have the single phase two wire system and the single phase three wire system. Now what is a single phase two wire system and a single phase three wire system? This is actually a single phase two wire system और ये जो है ये हमारा single phase three wire system है. Actually in a single phase two wire system we have single source connected to a load using the two wire system. एक हमारे पास लोड है और एक सिंगल सोर्स है और सोर्स लोड के साथ इन दो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है. सो दिस इज एक्चुअली अ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम. दिस इज अ सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम. हमारे पास तीन वायर्स हैं, दो सोर्सेस हैं और दो लोड्स हैं और ये दो सोर्सेस दो लोड्स के साथ इन तीन वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है. सो वी हैव टू सोर्सेस कनेक्टेड टू टू लोड्स यूजिंग द थ्री वायर सिस्टम. बट रिमेंबर दैट we have two sources having equal magnitude and these sources are in phase. इसी सिंगल फेज टू वायर सिस्टम में हमारे पास दो सोर्सेज हैं और दो लोड्स हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों सोर्सेज को देख लें तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये इन फेज है, मतलब इन दोनों सोर्सेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. Vp and Vp, these are the magnitudes of these two sources having the phase angle phi and phi. So these two sources are in phase. It means that there is no phase difference. तो चूंकि इन दोनों सोर्सेस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सो इसलिए हम कहते हैं कि दिस सिस्टम इज एक्चुअली अ सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम. नाउ इफ वी लुक एट दिस सिस्टम, ये सिस्टम और ये सिस्टम तकरीबन दोनों सेम नजर आ रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम. ये भी थ्री वायर सिस्टम है और ये भी थ्री वायर सिस्टम है, बट दिस सिस्टम इज एक्चुअली अ सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम और ये सिस्टम जो है दिस इज एक्चुअली अ टू फेज थ्री वायर सिस्टम. लाइक हाउ we have two sources and we have two loads and these two loads are connected to these two sources by means of these three wires. But if we look at the phase difference between these two sources, so we have a phase difference between these two sources. So they have equal magnitudes but with different phases.
they are not in phase. So we have two sources and with a phase difference. So this system is actually called a two-phase three-wire system. We have a two-phase three-wire system because there is a phase difference between the two sources. If we look at these two sources, अगर हम इन दोनों sources को देख लें तो इन दोनों sources में कोई phase difference नहीं है, ये दोनों sources in phase हैं, तो इसीलिए इसी system को हम single phase system कहते हैं। अब अगर हम इसी system को देख लें तो ये दोनों sources in phase नहीं है, हालांकि इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं बट ये इन फेज नहीं है। इन दोनों सोर्सेस के डिफरेंट फेजेस हैं, एक का फेज एंगल 0 डिग्री है, दूसरे सोर्स का फेज एंगल -90 डिग्री है। सो एज these two sources are not in phase, so that is why we call this system as two phase three wire system. Now if we look at this system, if we look at this system is actually a three-phase four-wire system. This system is actually a three-phase four-wire system because we have three phases. We have three sources and all the three sources have different phase angles. हमारे पास तीन sources हैं और तीनों sources में phase difference है. If we look at the phase angle of this source, सो इसका जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री है, दूसरे सोर्स का फेज एंगल -120 डिग्री है, तीसरे सोर्स का जो फेज एंगल है दैट इज +120 डिग्री. सो इट मींस दैट वी हैव थ्री सोर्सेस एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री बिटवीन द थ्री सोर्सेस. अगर इसी सोर्स को हम एज अ रेफरेंस सोर्स लें तो ये सोर्स फर्स्ट सोर्स से लेग कर रहा है बाई 120 डिग्री और ये सोर्स फर्स्ट सोर्स से लीड कर रहा है बाई 120 डिग्री. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री बिटवीन द थ्री सोर्सेस. देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री among these three sources. So this system is actually called the three-phase system. So we have the three-phase four-wire system because we have now four wires. जिस तरह हमारे पास थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है इसी तरह हमारे पास थ्री फेज फोर वायर सिस्टम भी होता है, लेकिन याद रखें कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 3 वायर्स होंगे और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में हमारे पास 4 वायर्स होंगे. अगर आप इसी सिस्टम को देख लें तो इसी सिस्टम में ये तीन हमारे पास फेजेस हैं और ये हमारे पास न्यूट्रल है. सो दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड अ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम. वी हैव थ्री सोर्सेस कनेक्टेड टू थ्री लोड्स यूजिंग द फोर वायर सिस्टम. हमारे पास तीन सोर्सेस हैं और तीन लोड्स हैं और इन फोर वायर्स के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है. सोर्सेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट फेजेस. हमारे पास तीन सोर्सेस हैं और इनका फेज एंगल एक दूसरे से डिफरेंट है, इनमें 120 डिग्री फेज डिफरेंस है. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड थ्री फेज फोर वायर सिस्टम. जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी के थ्री फेज एसी को हम किस तरह जनरेट करते हैं. सो थ्री फेज एसी को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि सिंगल फेज एसी को हम किस तरह जनरेट करते हैं. सो एसी जनरेशन के एसी को हम किस तरह जनरेट करते हैं. तो अगर हम एसी जनरेटर की बात कर लें या हम अगर सिंगल फेज एसी जनरेटर की बात कर लें तो सिंगल फेज एसी जनरेटर में हम सिंगल फेज वोल्टेज किस तरह जनरेट करते हैं. सो रिमेंबर दैट एसी जनरेशन के लिए या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करने के लिए वी मस्ट हैव द मैग्नेटिक फील्ड, वी मस्ट हैव द कंडक्टर
and there must be a relative motion between the magnetic field and the conductor. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए हमारे पास कंडक्टर्स होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और इन दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और कंडक्टर मूव कर रहा तो उसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, या अगर कंडक्टर स्टेशनरी हो और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो, so there will be an EMF induced in the conductor. So there must be a relative motion for the generation of AC voltage or AC current. जब कंडक्टर्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे, जब कंडक्टर्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे तो ही कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होगा। और कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द conductor. Like let's suppose we have a conductor. This is actually a conductor. We have the north pole and we have the south pole and we have the magnetic flux lines, and this conductor will rotate in clockwise direction. North pole है हमारे पास, south pole है, so there will be the magnetic flux lines generating from the north pole and terminating at the south pole. और हमारे पास एक कंडक्टर है, so अगर इसी कंडक्टर और फ्लक्स लाइंस के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो इसी कंडक्टर में ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर हम इसी पोजीशन को देख लें, so this is the direction of motion, मतलब ये जो कंडक्टर है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, so at this position the direction of motion is parallel to the magnetic flux lines, parallel or anti-parallel. The direction of motion is parallel to the magnetic flux lines, so there will be no voltage or EMF induced in the conductor at this stage. इसी स्टेज में इसी कंडक्टर में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। अगर हम इसी दूसरे केस को देख लें, नाउ अगर इसी केस को हम देख लें, so this conductor is actually cutting some flux, some amount of flux. चूंकि अब ये कंडक्टर कुछ ना कुछ फ्लक्स कट कर रहा है, it means that the motion is 45 degree to the flux, so induced voltage is 0.707 of its maximum value. अब चूंकि ये कंडक्टर कुछ ना कुछ फ्लक्स कट कर रहा है, so it means that इसी कंडक्टर में कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा. This is actually the voltage that is being induced in this conductor. Now if we look at this stage, now the conductor is cutting the maximum flux. If we look at the area of this conductor, अगर कंडक्टर के एरिया को हम सरफेस एरिया को हम देख लें, so ये मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है. It means that at this stage maximum voltage will be induced in this conductor as the motion is perpendicular to the flux. The motion of the conductor is perpendicular to the magnetic flux lines, so induced voltage is maximum. या हम ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर का जो एरिया है उससे मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है, so we will say that maximum voltage is being induced across this conductor. अब अगर इसी केस को देख लें तो this conductor is actually rotating. Now some of the flux is being cut by the conductor, by the area of the conductor, तो जो वोल्टेज है वो दोबारा रिड्यूस कर रहा है. Induced voltage is 0.707 of its maximum. अगर इस स्टेज को देख लें, अब ये कंडक्टर कोई फ्लक्स कट नहीं कर रहा. The motion of the conductor is parallel to the flux, so the voltage is 0 across the conductor. अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि
ये जो वोल्टेज है ये रिवर्स कर रहा है, क्योंकि करंट इसमें रिवर्स करेगा या वोल्टेज इसका रिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि इसी कंडक्टर ने हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। इट मींस दैट कि पहले जो साइड नॉर्थ पोल के अंदर था अब वो साउथ पोल के अंदर आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये वाला साइड यहाँ पे था और ये वाला साइड साउथ पोल के अंदर आ रहा था। अब चूंकि कंडक्टर रिवर्स कर रहा है तो इसलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज भी रिवर्स हो रहा है। और फिर वही केसेस के पहले जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट विल बी 0.707 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फिर जब मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा सो द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। और इसी तरह हमारे पास एक कंप्लीट साइनोसाइडल वेव बन जाता है, एक कंप्लीट एसी वेव हमारे पास बन जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द जनरेशन ऑफ ए सिंगल फेज वोल्टेज और द जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, कि हमारे पास एक कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड हो and there must be a relative motion between the conductor and the magnetic field. Now for the generation of three-phase AC. For the generation of three-phase AC, we will have three conductors and these conductors will be displaced from each other by 120 degree. So हमारे पास तीन कंडक्टर्स हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास तीन कंडक्टर्स हैं और these three conductors are displaced from each other by 120 degree. It means that कि इन तीनों कंडक्टर्स के बीच 120 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो जो हमारे पास थ्री फेज वोल्टेज इंड्यूस होंगे ये हमारे पास थ्री फेज वेवफॉर्म है। ये वोल्टेज है जो फर्स्ट कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है, फेज वन। दिस इज एक्चुअली फेज वन, दिस इज फेज टू एंड दिस इज फेज थ्री। तो अगर आप इन तीनों फेजेस को देख लें सो फेज टू लेग्स फेज वन बाय 120 डिग्री, फेज टू इज लेगिंग फेज वन बाय 120 डिग्री। इट मींस दैट ये जो फेज वोल्टेज है फेज टू मतलब जो दूसरे कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो फेज वन वोल्टेज से लेग करेगा बाय 120 डिग्री। इसी तरह फेज थ्री लेग्स फेज वन बाय 240 डिग्री। ये जो फेज थ्री है ये फेज वन से 240 डिग्री लेग कर रहा है। इसी तरह फेज थ्री जो है फेज टू से 120 डिग्री लेग कर रहा है। और अगर हम लीड की बात कर लें सो फेज वन इज लीडिंग फेज टू बाय 120 डिग्री। सिमिलरली फेज वन इज लीडिंग फेज थ्री बाय 240 डिग्री। So there is a phase difference of 120 degree between these three phases. There is a phase difference of 120 degree between phase 1 and phase 2 and there is a phase difference of 120 degree between phase 2 and phase 3. phase 1 और phase 2 के बीच 120 degree phase difference होगा और phase 2 और phase 3 के बीच 120 degree phase difference होगा. So this is actually the generation of थ्री फेज एसी, कि हम थ्री फेज एसी को किस तरह जनरेट करते हैं। तो हम थ्री फेज वाइंडिंग्स लेते हैं और उन थ्री फेज वाइंडिंग्स को हम इस तरह कनेक्ट करते हैं कि उनमें 120 डिग्री फेज डिफरेंस क्रिएट हो। तो उन वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे सो दोज वोल्टेज विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री। सो दिस इज एक्चुअली द जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी. Now this is the basic structure of our electric system. ये structure already हम discuss भी कर चुके हैं that we have the generating station. Generating station का काम क्या होता है कि वो power produce करता है, वो थ्री फेज power produce करता है। हम ये बात बार बार discuss कर चुके हैं कि हम जो generation करते हैं, transmission करते हैं और distribution करते हैं वो in the form of थ्री फेज AC करते हैं। मतलब पावर ट्रांसमिट, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम थ्री फेज सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ जनरेटिंग स्टेशन में हमारा पावर जनरेट होता है। फिर दिस इज एक्चुअली द पावर ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या होता है कि
वोल्टेज को स्टेप अप कर सके। एंड दिस इज आवर ट्रांसमिशन सिस्टम। वी हैव द 3 फेज 3 वायर AC सिस्टम। ट्रांसमिशन के लिए हम 3 फेज 3 वायर AC सिस्टम यूज करते हैं। फिर हमारे पास सबस्टेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है। सो वी हैव द जनरेशन, वी हैव द ट्रांसमिशन एंड वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। यही बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज आल्सो द लेआउट। ये हमारा पावर स्टेशन है, पावर ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है। फिर ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है। फिर उसके बाद 11 kV फीडर्स हैं और फिर मतलब ये इसको अगर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर ले सो दिस विल बी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज एक्चुअली द 3 फेज 4 वायर सिस्टम। यहाँ पे तो आपको 3 वायर नजर आ रही है, बट जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है दैट विल एक्चुअली बी द 3 फेज 4 वायर सिस्टम एंड दीज आर आवर customers. So we have the power station, we have the power transformer, we have the transmission substation and we have the distribution substation. या इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, फिर ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब इसको हम 11 kV फीडर्स कंसीडर कर सकते हैं। 11 kV फीडर्स इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि 11 kV वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट्स में कंसीडर करता है। सो फिर इसके बाद हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम आएगा। तो ये हमारा एक जनरल लेआउट है जो जी किस तरह पावर जनरेट होता है, फिर किस तरह हम उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं among the consumers. So this is actually the general layout of our power system.